توجہ فرمائیں، اس ویڈیو میں دکھائے گئے تمام کردار اور مناظر مصنوعی ذہانت AI کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ کسی حقیقی انسان پر مبنی نہیں ہے، بلکہ صرف کہانی کو بہتر طریقے سے پیش کرنے اور سیکھنے میں مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے اور اللہ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہے گا تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال رہے گی۔ چنانچہ جو ہی ہاجرہ علیہ السلام کو پتا چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ کہہ کر وہ اپنے شیرخوار بچے کی طرف پلٹ گئیں۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی، لیکن اپنے لیے تو درکنار، ماں کو بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا نہ خوراک۔ اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ عورت کتنی بھی باحوصلہ ہو اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکی۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلی، ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی۔ نشیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر اور بے چین ہوئی اور بلندی کی طرف دوڑی۔ اس طرح مروا پہاڑی پر چڑھ گئی، وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال سے مروا پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل دی۔ درمیان میں نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگی۔ اس طرح پھر صفا پر چڑھ گئی۔ اللہ اکبر! ایک تو عورت ذات کمزور، پھر بھوک پیاس سے نڈھال، اس پر کس قدر سعی اور کوشش میں مصروف، وہ بھی اپنے بچے کے لیے۔ بہرحال بار بار کوشش کے خیال سے انہوں نے صفا اور مروا پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے مسلمان عازمین حج صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جبریل فرشتے کے ذریعے زمین پھاڑ کر پانی نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہ رہا ہے۔ زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی، زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا، خود بھی تھوک پیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر باد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا۔ اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آبپاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا، جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے۔ جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کر دیتے۔ چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، اس بنا پر ان راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہیں چشموں کا خوب علم تھا۔ ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا۔ کہنے لگے ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔ اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے۔ یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے، وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا، ٹھیک ہے،
लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उजरत अदा करना होगी। उनके लिए यह सस्ता सौदा था। उनके पूरे कबीले को सामान्य जिंदगी मिल रहा था, जबकि सिर्फ एक औरत और उसके बेटे की जिम्मेदारी उन पर आयद हो रही थी। उन्होंने फौरन हामी भर दी और वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। इस तरह ये लोग सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की मईशत का जरिया बन गए और इस तरह सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहुम में परवरिश पाते रहे। उन्होंने उन लोगों से अरबी सीख ली और उनसे भी ज्यादा अरबी दान बन गए। फसाहत और बलागत से अरबी में बातचीत करने लगे। फिर उनकी इस कबीले में शादी हो गई। उनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ। इन्हीं में से सरवरे कायनात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। बनु जुरहुम की आमद और आबादी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे यानी 2 कमजोर इंसानों को इस वीरान जगह छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस वक्त बैतुल्लाह की तामीर हो चुकी थी? दुरुस्त बात यह है कि उस वक्त खाना काबा की तामीर नहीं हुई थी। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले इसकी तामीर हो चुकी थी या सिर्फ जगह ही मारूफ थी? इस बारे में 2 तरह की रिवायात है। बाज में आता है कि सिर्फ इसकी जगह मारूफ थी और बाज में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले शीस अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था और वो गर्दिश अय्याम के साथ साथ मुनहदिम होकर खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल इसकी जगह मालूम थी और वही पहला घर था, जैसा कि अल्लाह ने खबर दी है। अल्लाह ताला ने पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया था वही है जो मक्का में है और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहुम के माहौल में उम्र की मंजिलें तय करते रहे और वो होश संभालने के करीब हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल 1-2 बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया। हुआ यूं कि एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए। एक जगह आराम के लिए बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए। नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने लख्त जिगर को अपने हाथ से ज़बह कर रहे हैं। साथ ही आंख खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाए किराम के ख्वाब हकीकत होते हैं, अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी सूरत उनके ख्वाब में नहीं आ सकता। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। किसी किस्म की परेशानी का शिकार न हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अजीम और ताज्जुबखेज वाक़े का कुरान मजीद में जिक्र करते हुए फरमाया, और इब्राहिम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। तो हमने एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी। फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब तू बता, तेरी क्या राय है? यहाँ सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा क्यों लिया? वो चाहते तो इस्माइल को सोते में ज़बह कर देते, इस तरह अल्लाह का हुक्म बजा लाते। वो बेटे के पास क्यों गए और उनसे मशवरा क्यों लिया? जी हाँ, ये मसला याद रखने के काबिल है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को अज्र व सवाब में शामिल करने की कोशिश करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को सवाब में शामिल करने के लिए उन्हें अल्लाह के हुक्म से आगाह किया। ये न चाहा कि मैं अकेला ही अज्र लेता रहूं, बल्कि दूसरे की खैरखाही को पेश नजर रखा। वालिदैन के लिए आपके इस अंदाज में नसीहत मौजूद है, ये कि औलाद को सवाब के मौके फराहम करें, उनकी सही तरबियत करें। अगर सदका करने का मौका मिले तो बच्चों के जरिए सदका कराएं, ताकि उन्हें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत पड़े। जब किसी दीनी मजलिस में बैठने का मौका मिले तो अपनी औलाद को भी साथ लेकर जाएं। बेशुमार लोग खुद तो जाते हैं, औलाद को जाने के लिए कहते भी नहीं। खुद दीन सीखते हैं, औलाद को दीन नहीं सिखाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से राय ली। सुभान अल्लाह, उन्होंने जवाब में फरमाया, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए। ये नहीं कहा कि मुझे तो हुक्म नहीं हुआ, बल्कि फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया, इसलिए कि वो जानते थे अंबिया का ख्वाब हकीकत पर मबनी होता है, अल्लाह की वही होता है। इसलिए बिल्कुल परेशानी जाहिर न की। ये तक न पूछा मुझे क्यों ज़बह कर रहे हैं या मेरा क्या जुर्म है
या आपके पास कौन सा सरीह हुक्म आया है? उन्होंने ऐसी कोई बात न कही। अल्लाह की फरमाबरदारी इसी को कहते हैं। चुनाचे अपने बाप से कहा, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है उसको कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उलमाए किराम फरमाते हैं, इस जुमले से उनका इंतहाई अदब और एहतराम शामिल है और इसमें जबरदस्त तवक्कुल मौजूद है। ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, बल्कि आपने अल्लाह की मशीयत को जुमले में शामिल किया और फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप बेटा दोनों ही मुसम्मम इरादे के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, जब आप मुझे ज़बह करने लगे तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा, ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाए। चेहरा देखकर आप पर शफकत पिदरी गालिब न आ जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पेशानी पकड़कर जमीन पर लिटा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। जब दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया, अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन न काटी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया था। इसलिए कि छुरी में काटने की ताकत और आग में जलाने की सलाहियत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। अल्लाह ने दोनों से ये ताकतें सल्ब कर ली। अब इब्राहिम जोर लगा रहे हैं। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अब्बा जान जल्दी कीजिए, छुरी चलाइए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र यूं फरमाया है, जब वो दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया। हाँ, तो छुरी चलती रही, गला न कटा, इसलिए कि इम्तिहान और आजमाइश की तकमील हो चुकी थी। ये बात साबित हो चुकी थी कि अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में दोनों पूरी तरह कोशां हैं। अल्लाह ताला भी फरमाबरदारी ही का सिला अता फरमाते हैं। चुनाचे आवाज आई, हमने उसे पुकारा, ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, यकीनन हम इसी तरह नेकोकारों को जजा दिया करते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी। तारीख का एक अजीम तरीन इम्तिहान और कड़ी आजमाइश दुनिया को आज भी हैरत में डाल देती है। कौन है जो बेटे को जबह करने पर तैयार हो जाए, खास तौर पर इस सूरत में जब औलाद भी इकलौती हो, जिसकी वजह से 86 साल के बाद आंगन में बहार आई हो। फिर उसकी कुर्बानी का भी वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया था, इशारतन ख्वाब में रहनुमाई की गई थी। आप कह सकते थे ये कत्ल और संगीन जुर्म है, कह सकते थे अपने बेटे को किस जुर्म में कत्ल करूं, लेकिन आपने बगैर किसी तामुल के सरे तस्लीम खम कर दिया और इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह फरमाते हैं, और इब्राहिम वो हैं जिन्होंने वफादारी की। इस आयत में ये नहीं बताया गया कि किस चीज में वफादारी की, इसलिए कि वो तो हर मामले में मुकम्मल तौर पर वफादारी का मुजाहरा कर चुके थे। आग में डाले जाने वाला मामला, बीवी और बच्चे को लखोदक मैदान में छोड़ आने का मामला, फिर ज़बह का इम्तिहान, तामीर बैतुल्लाह की मशक्कत, गरज हर मामले में वफादार थे। हत्ता कि अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इस कदर वफादार कि अबू ज़ीफान के लक़ब से मशहूर हो गए। इसका माना है मेहमान नवाज। किसी मेहमान को दस्तरखान पर अपने साथ बिठाए बगैर एक लुकमा नहीं खाते थे। बाहर निकलते, मेहमान तलाश करते, फिर उसके साथ मिलकर खाना खाते। मेहमान न मिलता तो सख्त गमगीन हो जाते। इस तरह उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासदारी की। ज़बह वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने उन्हें क्या सिला दिया? अल्लाह फरमाते हैं, हमने उसे अजीम ज़बीहे का बदला अता किया। हाँ, तो हम बता रहे थे, छुरी ने गला न काटा। ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी। आवाज पीछे से आई थी। उन्होंने मुड़कर देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। वो आसमान से एक मेढा लेकर आए थे। दुनिया के मेढों में से नहीं, बल्कि जन्नत का मेढा लाए थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वो मेढा जन्नत में 40 साल तक चलता रहा। सफेद रंग, कुशादा आंखों, खूबसूरत सींगों वाला हसीन और जमील मेढा था। बहरहाल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी का बदला था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में दिया गया और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हुक्म हो गया कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी और हदी पेश करते रहें। काबे के पास हरम इलाही में हर साल ये सुन्नत अदा की जाती है और उनके साथ साथ पूरी जमीन के तमाम खित्तों पर बसने वाले मुसलमान भी इस अजीम फरमाबरदारी की अलामत के तौर पर कुर्बानियां पेश करते हैं। मेंढे के जिक्र का मतलब ये है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पर गामजन हो जाएं। ये मेंढा हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी का सबक देता है। हमें चाहिए सुन्नत इब्राहिमी की इक्तिदा करते हुए हम अपनी जानों, अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसे अजीम ज़बीहा अता किया और हमने उसका पिछलों में जिक्र खैर छोड़ा। सलामती हो इब्राहिम पर। इसी तरह ही
हम नेकोकारों को जजा देते हैं, यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उसे नेकोकार नबी इसहाक की वलादत की खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी फिलिस्तीन की तरफ वापस लौटने के बाद सुनाई गई। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और तकरीम के मद्देनजर अल्लाह ताला ने इसहाक की खुशखबरी सुना दी। बहरहाल इस अजीम आजमाइश में बेमिसाल कामयाबी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन आए और 120 साल की उम्र में इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत मिली, जबकि सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। उन पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। ऐसे में 3 फरिश्ते आए। वो तो कौम लूत की तबाही के लिए आए थे। रास्ते में अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया सारा को खुशखबरी सुनाई और इस गरज के लिए वो इंसानी शक्ल में आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले ही बहुत मेहमान नवाज थे। उन्हें देखकर बहुत खुश हुए कि मेहमान आ गए। फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। वो हैरत ज़दा थे कि ये लोग उनकी बस्ती के रहने वाले तो हैं नहीं, लेकिन उन पर सफर के निशानात भी नहीं हैं, जैसा कि दूर से चलकर आने वालों में होते हैं। न उनके पास सवारियां हैं। कुरान मजीद में आता है, फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहिम ने भी सलाम किया और दिल में ख्याल किया ये अजनबी लोग हैं। फिर वो अपनी मेहमान नवाजी की आदत के मुताबिक उन्हें अंदर ले आए, उनके लिए खाने का इंतजाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने सलाम किया। इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया और फौरन भुना हुआ बछड़ा ले आए। और बछड़ा भी मोटा था। उनके सामने खाना पेश किया, लेकिन वो भला कब खाने की तरफ हाथ बढ़ाने वाले थे। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन न हो। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, इब्राहिम न डर, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। जब उन्होंने ये बातें की तो सारा अलैहिस्सलाम पास खड़ी थी। वो हंसने लगी। वो खुश खबरी से पहले क्यों हंस पड़ी? उलमा इस बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने सुना ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह करने जा रहे हैं तो उनके खात्मे की खबर सुनकर वो हंसती। इसके बाद फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई। हमने उसे इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद याकूब पोते की भी खुशखबरी दी। बहुत जल्द ही हम इसहाक से तेरी वीरान गोद को आबाद करेंगे और तू अपनी जिंदगी में उसके बेटे याकूब को भी देख लेगी। अब 3 बिशारतें जमा हो गईं। बेटा पैदा होगा, लंबी उम्र मिलेगी यानी बेटा जवान होगा, और फिर वो अपने पोते को भी देखेगी। इससे बढ़कर क्या इज्जत और तकरीम हो सकती है। इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया करीम यानी इज्जत वाला कौन है, तो आपने फरमाया करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मतलब ये कि नबी बिन नबी बिन नबी बिन नबी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान है कि खुद भी करीम, बाप भी करीम, दादा भी करीम और परदादा भी करीम। इससे बढ़कर इज्जत अफजाई क्या हो सकती है। बहरहाल फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी। फिर उन्होंने इब्राहिम को एक साहिब इल्म लड़के की बशारत दी। खुशखबरी सुनकर सैयदा सारा हैरान हुई। मारे हैरत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उन्होंने अपने रुखसार पर हाथ मारा जैसा कि औरतों की आदत होती है। कहने लगी, हाय अफसोस, क्या मैं बच्चा जन्मूंगी हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खामन बूढ़े हैं। ये तो हैरत की बात है। एक ये थी इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आते रहते थे। एक रोज आए तो उनसे कहा, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं हासिल हूँ। इस तरह उन्होंने खुदाई शुरू की। ऐसे में उन्हें शीश अलैहिस्सलाम की तामीर के आसार नजर आए। उन्होंने उस पर तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत में यह भी है कि उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दिनों में जब मक्के के कुरैश ने काबे की तामीर नए सिरे से की तो उन्होंने उसकी बुनियादों को गहरा करना चाहा। वो खुदाई करते उन सब्ज पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने उन पत्थरों को निकालना चाहा। एक शख्स ने कुदाल के जरिए एक पत्थर को बाहर निकाला तो उसके नीचे से इतना नूर निकलने लगा कि करीब था वो शख्स अंधा हो जाता। फिर पत्थर खुद ब खुद नीचे जा गिरा और अपनी जगह पर जम गया। इसके बाद लोगों ने उन पत्थरों को हाथ न लगाया और तामीर शुरू कर दी। कुरान मजीद में तामीर काबा और बैतुल्लाह का तस्करा इस तरह आया है, और जब हमने बैतुल्लाह के मकान में इब्राहिम को जगह दी और फरमाया कि मेरे साथ शिरक न करना और मेरे घर को तवाफ, क़ियाम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना, और फरमाया बेशक लोगों के लिए जो पहला घर तामीर किया गया है वो मक्का में है।
वो जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत का जरिया है। उसमें वाज़ेह निशानियां हैं, मसलन मकाम इब्राहिम, तो जो कोई हरम में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा। और फरमाया, और याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने कई बातों के जरिए आजमाया, वो उनमें पूरे उतरे तो अल्लाह ने फरमाया, मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइए। जवाब में अल्लाह ने फरमाया, मेरा इमामत का वादा जालिम लोगों के लिए नहीं है। और उस वक्त को याद करो जब हमने बैतुल्लाह को सवाब और अमन की जगह बना दिया और लोगों ने मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लिया। हमने इब्राहिम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ, एतिकाफ, रुकू और सुजूद के लिए पाक रखो। और वो वक्त भी याद रखो जब इब्राहिम ने दुआ की, ऐ परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके मोमिन बंदों को फलों का रिज्क अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुंचने की जगह बुरी है। और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे, ऐ हमारे रब, हमारी मेहनत को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला, जानने वाला है, और हमें अपना फरमाबरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमाबरदार गुरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने और राह फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए, इन्हें पाक करे, यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है। तामीर के दौरान जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुँचे जहाँ आज हजर अस्वद है, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा। हदीस में है, ये पत्थर निहायत सफेद था, अब स्याह हो गया है। इंसानों की गलतियां इसके स्याह होने का सबब बनी। जब दीवारें इंसानी कद के बराबर हो गईं, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पांव थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया। उनके पांव उसके अंदर किसी कदर धंस गए। पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम कहा जाता है। पहले ये पत्थर बैतुल्लाह की दीवारों के साथ रखा गया था। जब लोग तवाफ के लिए आते तो सैयदना इब्राहिम के पैरों के निशानात देखने के लिए यहाँ हुजूम हो जाता। इस तरह तवाफ करने वालों को दिक्कत का सामना होता। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम के मशवरे से इस पत्थर को इस जगह से कदरे हटाकर नमाज की सफों के करीब कर दिया, ताकि तवाफ करने वालों को दिक्कत न हो। ये मकाम बहुत मुकद्दस है। अल्लाह ने फरमाया है, मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। मकाम इब्राहिम के करीब इसके पीछे होकर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो लाजिमन वहाँ 2 रकात अदा किया करो। मौका न मिले तो फिर पूरी मस्जिद हराम में तवाफ से फरागत वाली 2 रकात पढ़ लिया करो। इस तरह काबा तामीर हुआ। तब नया हुक्म आया, लोगों में जो इस्तिताअत रखे उस पर अल्लाह के लिए हज बैतुल्लाह फर्ज है, और जो शख्स जानबूझकर एराज करे तो अल्लाह जहानों से बेनियाज है और उसे इसकी कोई परवाह नहीं। उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ, लोगों में हज का ऐलान कर दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह, मेरी आवाज भला किस किस तक पहुँचेगी? जवाब आया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। चुनाचे आप अरफात के एक पहाड़ पर चढ़े और आवाज लगाई, लोगों, बैतुल हराम का हज करो। अल्लाह ताला ने मुजजाना तौर पर यह आवाज तमाम इंसानों तक पहुँचा दी, खा वो पैदा हुए थे या नहीं। दूसरा मौजा ये हुआ कि अल्लाह ने बैतुल्लाह और उसके हज की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। अल्लाह ने फरमाया, और आप लोगों में हज का ऐलान कर दें, वो आपकी तरफ पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दूर से आएंगे। इस तरह लोग पैदल और सवार होकर कसरत से हज के लिए आने लगे और ये वीरान इलाका आबाद होने लगा। ये थे हालात और वाकयात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। आपने 175 साल की उम्र में वफात पाई। आपसे पहले सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई और उनकी वफात से कुछ ही अरसा बाद सैयदा सारा अलैहिस्सलाम 127 साल की उम्र में फौत हो गई। इन दोनों की वफात के बाद आप गमगीन रहने लगे। आखिर इतनी मुद्दत तक साथ रहा था। आप खलीलुर रहमान थे। आप पर सहीफे भी नाजिल हुए। आप अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।